It's the second lecture on the cell junctions, and the second type of cell junction is the occluding junction. ये occluding junctions क्या होती है? तो ये junctions वो junctions होती है जो cells को एक दूसरे के साथ seal करती है. They seal the cells. They seal the cells together. ये cells को एक दूसरे के साथ seal करती है. और इस तरीके से एक सेल को दूसरी सेल के साथ सील करती है. even a small molecule even a small molecule can't leak from one side of sheet of cells to other side of the sheet of cells. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल दो चार सेल्स ले लूँ, वन सेल, तो इनके दरमियान जो टाइट जंक्शंस होती है, टाइट और ओक्लूडिंग जंक्शंस में बोलूँगा, ओक्लूडिंग जंक्शंस जो होती है, तो ये सेल्स को एक दूसरे के साथ इस तरीके से सील करती है सो दैट इन सेल्स के दरमियान even a small molecule can't pass even a small molecule can't pass from one sheet of cells to another sheet of cells. For example, this is here it is an occluding junction between cell 1 and cell 2. Between cell 1 and cell 2 it's a type of occluding junction. तो ये एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है यहाँ पर. That barrier will not allow a single small molecule to pass from one side of the cell to the another side of the cell, from one sheet of cells to the other sheet of cells. So these are called as occluding junctions. So occluding junctions, they simply form a barrier. They simply form as a permeability barrier ये बनाती है across the epithelial cell sheets. तो epithelial cell sheets के दरमियान ये एक permeability एक barrier सा बनाती है, एक permeability barrier ये create करती हैं. और ये जो occluding junctions है, occluding junctions are simply, there are two types. One is called as the tight junctions, tight junction, and another is called as septate junction. Septate and tight junctions. तो ये दो तरह के occluding junctions है. तो occluding junctions हमने देखा कि ये वो junctions है जो दो cells को इस तरीके से seal करती है. They seal the cells together in such a way that even a small molecule, एक छोटा सा molecule भी leak out नहीं हो सकता है from one cell to another cell, from one epithelial sheet of cells to another sheet of cells. So those are called as the occluding junctions. So occluding junctions are of the two types now. One is called as the tight junction and another is called as the septate junction. Now what tight junction is? Tight junction क्या है? तो tight junctions are simply the occluding junctions, और इन tight junctions का दूसरा नाम है zonula occludens. The another name of the tight junction is zonula occludens. Zonula occludens is the another name of tight junctions. So another name of the tight junction, which is a type of the occluding junction. तो tight junction is also known as zonula occludens. और ये वो tight junctions वो occluding junctions होती है जो between the cells होती है और जो दो मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जरिए बन जाती है. तो टाइट जंक्शन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन को हम जोना ओक्लैडेंस भी बोलते हैं. तो ये जोना ओक्लैडेंस जो है ये ओक्लूडिंग जंक्शन ही है. तो ये जो टाइट जंक्शंस है ये बिटवीन सेल टू सेल एक ओक्लूडिंग जंक्शन होती है. इट इज अ सेल टू सेल ओक्लूडिंग जंक्शन. ये बिटवीन द सेल टू सेल ओक्लूडिंग जंक्शन है ये टाइट जंक्शन. occluding, it is a cell to cell occluding junction. और
ये टाइट जंक्शन बनती है बाय टू मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दो मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन टाइट जंक्शंस को बनाते हैं। दोज टू मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कोलिडेंस एंड ऑक्लिडेंस। कोलिडेंस कोलिडेंस and occludin. Collidins और occludins are the two major transmembrane proteins. ये दो major transmembrane proteins है. These are the two major transmembrane proteins. Two major transmembrane proteins. तो ये दो major transmembrane proteins है जो मदद करते हैं tight junctions between the cells. membrane proteins, two major transmembrane proteins. One is called as the collidin and another is called as the ocklidin. तो ऑक्लीडन और जो ये कोलिडन है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एसोसिएट हो जाते हैं विद द इंट्रासेल्युलर। इंट्रा मींस अंदर, सेल के अंदर जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उनके साथ ये कोलिडिन्स और ऑक्लिडिन्स ये एसोसिएट हो जाते हैं और बनाते हैं टाइट जंक्शंस। सिंपल है। तो टाइट जंक्शन ये कोलिडिन और ऑक्लिडिन क्या करते हैं, कोलिडिन और ऑक्लिडिन बेसिकली these are called as the these are basically the two major transmembrane proteins। यहाँ तक तो ये ठीक है। अब ये कोलिडिन्स और ऑक्लिडिन्स कैसे टाइट जंक्शंस बनाते हैं, these कोलिडिन्स एंड ऑक्लिडिन्स दे बेसिकली ये क्या करते हैं काम, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ दे जॉइन विद द इंट्रा, ये ज्वाइन हो जाते हैं विद द इंट्रासेल्युलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पेरिफेरल बाहर की तरफ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इंट्रासेल्युलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हम इंट्रासेल्युलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम जोनल ज़ाडो प्रोटीन्स भी बोलते हैं। दोज आर आल्सो कॉल्ड एज द ज़ाडो प्रोटीन्स, आल्सो कॉल्ड एज ज़ाडो प्रोटीन्स। तो इन ज़ाडो प्रोटीन्स के साथ कोलिडिन और ऑक्लिडिन मिल जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और क्या करते हैं काम, और ये टाइट जंक्शंस बनाते हैं। देन दे फॉर्म द टाइट जंक्शंस, और ये टाइट जंक्शंस बिटवीन द सेल्स बनाते हैं, टाइट जंक्शंस। तो सिंपल है यहाँ तक। तो टाइट जंक्शंस क्या है, दीज आर सिंपली द ऑक्लूडिंग जंक्शंस, और इनको हम दूसरा नाम भी कहते हैं जोना ऑक्लिडेंस, और ये सेल सेल ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। और ये इनको कौन बनाता है, दो मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, कोलिडिन एंड ऑक्लिडिन। ये कोलिडिन और ऑक्लिडिन क्या करते हैं, ये इंट्रासेल्युलर, इंट्रा इट इज विद इन द सेल, इंट्रासेल्युलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिनको हम ज़ाडो प्रोटीन्स भी कहते हैं, उनके साथ मिलकर ये टाइट जंक्शंस बनाते हैं। तो ये टाइट जंक्शंस जो है, ये टाइट जंक्शंस ये एक क्लोजेस्ट कांटेक्ट बन जाता है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। इट इज बेसिकली क्लोजेस्ट कांटेक्ट। दीज टाइट जंक्शंस दे आर बेसिकली द क्लोजेस्ट कांटेक्ट्स बिटवीन द सेल्स। ये क्लोजेस्ट कांटेक्ट्स होते हैं बिटवीन द सेल्स। तो टाइट जंक्शंस ये क्या हो जाते हैं, टाइट जंक्शंस ये क्लोजेस्ट कांटेक्ट्स बन जाते हैं। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं, ये क्लोजेस्ट कांटेक्ट बिटवीन सेल्स होते हैं, क्लोजेस्ट कांटेक्ट बिटवीन द सेल्स। बिटवीन सेल्स, तो ये क्लोजेस्ट कांटेक्ट बन जाते हैं बिटवीन सेल्स। तो इतने क्लोज जब एक कांटेक्ट बन जाता है, दैट मींस इवन अ सिंगल आयन can't get transferred to the other side of this junction। तो ये पॉसिबल कर देते हैं कि छोटी चीज भी यहां से वहां नहीं होनी चाहिए। ये प्रिवेंट करते हैं फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करते हैं। दे प्रिवेंट द फ्री पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, टाइट जंक्शंस ये प्रिवेंट करते हैं फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रिवेंट्स फ्री फ्लो और फ्री पैसेज of molecules,
फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को ये प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि अगर एक एपिथेलियम है तो अगर ये फॉर एग्जांपल सेल लेयर है, शीट ऑफ सेल है, तो इनमें क्या है, दो शीट्स ऑफ सेल्स हैं, दो एपिथेलियल लेयर्स हैं, तो इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान टाइट जंक्शंस हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं कि मॉलिक्यूल्स ये क्रॉस नहीं होने चाहिए अक्रॉस द एपिथेलियम, ये मेम्ब्रेन, ये आयंस पास नहीं होने चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये जो ये टाइट जंक्शंस, ये इससे क्या हो जाता है, इससे एक पोलैरिटी, दैट मींस एंड्स, पोलैरिटी पोलैरिटी भी डेवलप हो जाती है एक एपिथेलियम में। अगर एक एपिथेलियल लेयर ऑफ सेल्स है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे एक पोलैरिटी बन जाती है, एपिथेलियल सेल्स की एक पोलैरिटी बन जाती है। कैसे? क्योंकि जो ये प्रिवेंट करते हैं टाइट जंक्शन, ये डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करते हैं बिटवीन द एपिकल एंड बेसल रीजन्स ऑफ, जो बेसल रीजन जो सेल्स होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एपिकल और बेसल रीजन की जो प्लाज्मा या बेसोलेटरल जो रीजन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो उनके दरमियान ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। दे सिंपली प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करती है डिफ्यूजन, प्रिवेंट करती है ये डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स को किसके दरमियान, बिटवीन, इसीलिए उससे एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है बिटवीन एपिकल दैट मींस दिस इज एन एपिकल this is the basal, for example this is basal part, this is the apical part of the cell। तो ये प्रिवेंट करती है दैट जो मॉलिक्यूल डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल जो हो जाता है बिटवीन एपिकल और बेसोलेटरल रीजन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बेसोलेटरल रीजन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसके दरमियान ये प्रिवेंट करते हैं। दिस इज द एपिकल रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, for example this is the apical region, of plasma membrane here, this is the apical region, तो टाइट जंक्शंस यहाँ हैं फॉर एग्जांपल। तो बिटवीन द एपिकल एंड बेसोलेटरल रीजन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन ये आयन ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करती है। ठीक, तो ये प्रिवेंट करती है एपिकल और बेसोलेटरल जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसको ये प्रिवेंट करती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, पोलैरिटी डेवलप्स, एपिकल और बेसल पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो ये टाइट जंक्शंस है। इसी तरह जो सेप्टेट जंक्शंस होते हैं, सेप्टेट जंक्शंस भी यही सिमिलर इसी तरह होते हैं जस्ट लाइक एज द टाइट जंक्शंस, वो भी ऑक्लूडिंग जंक्शंस ही होते हैं, लेकिन वो पाए जाते हैं इन इनवर्टेब्रेट्स। तो टाइट जंक्शंस आर फाउंड इन वर्टेब्रेट्स, ये वर्टेब्रेट्स में पाई जाती हैं टाइट जंक्शंस। और जो सेप्टेट जंक्शंस होती है, सेप्टेट जंक्शंस पाई जाती हैं इनवर्टेब्रेट्स में। It is simple. So septate junctions are found in the invertebrates. This is the objective. Septate junctions are found in invertebrates, while as the tight junctions are found in the vertebrates. And the main points regarding the tight junctions, why from the objectives come, is that tight junctions are basically the occluding junctions. If there is an objective that which of the following is occluding junction, there is written gap junction is written. There is written the plasmodesmata is there written, or there is written tight junction. Therefore, tight junction is occluding junction. And also one of the objectives which comes from the tight junctions or the occluding junctions is basically from the tight junction, that is proteins which are responsible for the formation of the tight junctions. Those are the colloidins. Those are colloidins and occludins. Occludins and the colloidins
Collagens and occludins are the two major transmembrane proteins which help in formation of the tight junctions. And those collagens and occludins, they basically they basically associate. They get associated with the intracellular peripheral membrane proteins. Intracellular peripheral membrane proteins which are known as ZADO proteins. उनके साथ ये एसोसिएट हो जाते हैं कोलेडिन्स और ओक्लूडिन्स और एक कनेक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टाइट जंक्शंस. ओके, दिस इज द end of this